Welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Welcome back, dear students. Today I am going to start a new topic, that is valuation of inventory. These MCQ series are going on, and I am going to provide you 23rd video on MCQ for those students who are preparing for any competitive examinations, BBA, BCA, CPT, CMA Foundation, CS Foundation, and other competitive examinations like UPPCL, B.Ed entrance, MCOM entrance, accountants, etc. These are having a great importance for them, and it describes the fundamental accounting. Dear student, first question is the inventory of finished goods is valued. So inventory, always remember it that inventory is always valued at cost price and market price, whichever is less, जो दोनों में से कम हो। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो भी इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल है may be possible if in case in future it is sold at a higher price, means market price, then that would be added as a profit in future. And if in case it is sold at a cost price that is less in the market, then you will not estimate future loss. Therefore, the cost of inventory will be equal. Always remember it, cost price and market price whichever is lower. It means answer C should be the correct answer. And in case of question number second, as per accounting standard second, the historical cost of inventory should normally be determined by using, देखें, जो historical cost of inventory है that is always valued at FIFO and weighted average cost method. FIFO and weighted average cost method. It means the answer C should be correct answer. Please read the accounting standard second for valuation of inventory. Right? Next question number third. As per accounting standard second, the historical cost of manufactured inventory should be arrived at on the basis of, तो हमेशा याद रखें historical cost of manufacturing inventory is always calculated and arrived at an absorption costing system. So therefore, the answer A should be the correct answer for question number third. And in case of marginal costing always valued the variable cost only. Estimated cost and standard cost से कभी भी आप इन्वेंट्री की वैल्यूएशन नहीं करते हैं, राइट? तो कभी भी इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन होगी या तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम से होगी और या तो मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम से ही होगी। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट सिस्टम में वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करते हैं, इसलिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग द बेस्ट सिस्टम है। वैसे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकेंड में हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंडर में मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम से ही बताया गया है। दिस इज लॉ, तो लॉ को हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, as per accounting standard second, the historical cost may be compared with net realizable value by, तो अब आपको ये देखना है कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू से कंपेयर कैसे किया जाएगा। तो किसका किया जाएगा, बस तुरंत आप समझ जाएंगे कि आंसर क्या होना चाहिए। फिर से क्वेश्चन एक बार और पढ़ लें कि हिस्टोरिकल कॉस्ट में बी कंपेयर्ड विद नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो आइटम्स बाय आइटम मेथड, आइटम बाय आइटम मेथड ये भी सही है, ग्रुप ऑफ आइटम मेथड ये भी सही है, यानी बोथ आंसर्स आर करेक्ट। अब इसके बाद आप आंसर सी और आंसर डी भी देखें, एग्रीगेट गलत है
और डी आंसर आपका कंप्लीट होगा, क्योंकि दोनों है, आइटम बाय आइटम मेथड भी है और ग्रुप ऑफ आइटम मेथड भी है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें, तब आपको समझ में आएगा कि हिस्टोरिकल कॉस्ट में बी कंपेयर्ड विद नेट रियलाइजेबल बाय वैल्यू बाय आइटम मेथड एंड ग्रुप ऑफ आइटम मेथड, दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में केवल एक ही आंसर होता तो हम एक आंसर ही ए आंसर ही कंप्लीट मानते, लेकिन यहाँ पर दोनों आंसर दिया हुआ है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर डी होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 देखें, डैमेज्ड इन्वेंट्री। बेटा हमेशा याद रखो, व्हाट एवर द इन्वेंट्री इज डैमेज्ड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट यू आर गोइंग टू रियलाइज। आपके पास क्या मिल रहा है, दैट वुड बी योर प्राइस, दैट वुड बी योर प्राइस टू सेल, राइट। तो डैमेज्ड इन्वेंट्री इज ऑलवेज वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नॉट एनी अदर। कुछ और सोचने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। डैमेज्ड इन्वेंट्री जो आपको मिल जाए, क्योंकि आप एंट्री भी पास करते हैं, तो एंट्री क्या पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। लॉस बाय डैमेज या लॉस बाय फायर या लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट, राइट, टू इन्वेंट्री या टू गुड्स या टू परचेजेज। अब यहाँ पर आपको केवल इतना देखना है कि डैमेज इन्वेंट्री किस लेवल पर वैल्यू की जाती है, तो रियलाइजेबल वैल्यू कितने में बिक जाएगा, बस, और कुछ नहीं। बाकी पोर्शन जो है दैट वुड बी योर लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट कांट बी सेपरेटली डिटरमिन्ड, इन्वेंट्री ऑफ बाई प्रोडक्ट शुड बी वैल्यूड एट। अब यहाँ पर इन्वेंट्री ऑफ बाई प्रोडक्ट शुड बी वैल्यूड एट, तो इन्वेंट्री ऑफ बाई प्रोडक्ट किसका बता रहे हैं, इन्वेंट्री ऑफ बाई प्रोडक्ट, और जिसका सेपरेटली डिटर्मिनेशन ना हो सके, राइट। अब आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे, तो बिल्कुल वही सेम आंसर आएगा जो क्वेश्चन नंबर 5 का था, यानी कि यहाँ पर भी एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते बाई प्रोडक्ट को, और बाई प्रोडक्ट का वैल्यूएशन करना है, तो बाई प्रोडक्ट जितने में सेल हो जाए वही आपकी रियलाइजेबल वैल्यू होगी, वो उसी पर ही आपका वैल्यूएशन किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन LIFO मेथड इज फॉलोड। अब FIFO मेथड, सॉरी, क्वेश्चन में FIFO मेथड फॉलो किया जा रहा है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइस। तो डियर, इफ द प्राइसेज आर गोइंग टू राइज, अगर प्राइसेज राइज हो रहा है तो यहाँ पर बिजनेसमैन जो होगा वो हमेशा ही अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि प्रॉफिट राइज होगा और जो गुड्स की कॉस्ट होगी वो कम होती जाएगी, यानी दैट वुड बी लोअर। अब आप ऑप्शन देखें, यानी रिपोर्टेड प्रॉफिट फॉल, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। रिपोर्टेड प्रॉफिट राइज ड्यू टू लोअर कॉस्ट ऑफ गुड्स, तो यहाँ पर आपका आंसर ये कंप्लीट सही हो रहा है बी। लेकिन फिर भी थर्ड देख ले, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट ओल्ड कॉस्ट एट इन अ बैलेंस शीट, नहीं, ये कोई ऑप्शन नहीं, नन ऑफ दिस। इट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। एंड इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो बेटा अब यहाँ पर आपको देखना है कौन सा सही है। तो सबसे पहले आप देखें ऑप्शन ए, द वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री अंडर सिंपल एवरेज प्राइस मेथड इज रियलिस्टिक, गलत है, क्योंकि वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री सिंपल एवरेज प्राइस से नहीं कैलकुलेट किया जाता, बल्कि कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस पर कैलकुलेशन की जाती है। नेक्स्ट देखें, यूजुअली प्रॉफिट और लॉस विल नॉट अराइज आउट ऑफ प्राइसिंग ऑफ द इशू बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, ये भी गलत है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। नेक्स्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज shown on the asset side of balance sheet as fixed assets, no,
स्टॉक इज वन ऑफ, स्टॉक क्या है, करेंट एसेट्स होता है। कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड क्लोजिंग स्टॉक, ये सभी करेंट एसेट्स के पार्ट होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नाउ यू हैव ऑप्शन डी, इसे भी पढ़ ले। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज राइट, एब्सोल्युटली राइट। और ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस क्लोज माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपका होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। Right, this is right. It means answer option D is a correct answer for question number 8. And in question number 9, under inflationary condition, अब inflation हो रहा है, which of the method will show highest value of closing stock? तो highest value of closing stock कौन सा दिखाएगा? तो बेटा अभी आपको पीछे क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया है कि we want to get a higher profit at a lower cost, तो therefore FIFO method should be the best, right? Under inflationary condition, inflationary condition में क्या होता है, फ्यूचर प्राइसेज बढ़ रही होती हैं और जो हमारी कॉस्ट होती है वो कम होती है, ठीक, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10, अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन विच ऑफ द मेथड विल शो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी? तो जब लोवेस्ट वैल्यू की बात आएगी तो बेटा फीफो मेथड में जो हाईएस्ट वैल्यू पर खरीदा गया होगा वो बिकेगा, राइट। और लीफो मेथड में आपकी जो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, जो पहले लास्ट की ही वैल्यू जो है वो पहले बिकेगी, यानी सेंड की जाएगी। तो लास्ट की ही वैल्यू से ही आपको क्लोजिंग स्टॉक भी बचना है, इसलिए मेथड आपको लेना है लीफो। लीफो मेथड में हमेशा लोवेस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होगी। याद रखो, फीफो मेथड में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होगी और लीफो मेथड में लोवेस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होगी। लीफो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, फीफो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसे कभी मत भूलें। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 11, अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन विच ऑफ द मेथड विल शो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात किया जा रहा है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 11 में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट किसकी हाईएस्ट होगी? कॉस्ट जब हम फीफो मेथड से होंगे तो इन्फ्लेशन में हमारी हाईएस्ट होगी और लीफो में कम होगी, जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 10 देखा है। वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज की बात ही नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर प्राइसेज एवरेज में ली जाती हैं और वहाँ पर वेटेड एवरेज में वेट के बेसिस पर ली जाती है। तो एवरेज प्राइस और वेटेड एवरेज प्राइस में ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है, फीफो और लीफो में ही आपको कंपेयर करना है। तो अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन विच मेथड विल शो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू किस में आएगी? फीफो में आएगी। और क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल शो लोवेस्ट वैल्यू। तो बेटा जहां लोवेस्ट वैल्यू की बात आ गई, अब आप क्या करेंगे? लोवेस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपको ऑप्शन बी लगा देना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फीफो मेथड हो गया और लोवेस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लीफो मेथड होगा। और क्वेश्चन नंबर 13, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, तो फार्मूला आप हमेशा याद रखें, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका फार्मूला है। अब फर्स्ट ऑप्शन देखें, क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये फार्मूला आपका गलत हो गया क्योंकि ओपनिंग स्टॉक अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ते हैं तो ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेज आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन गलत। क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेज,
ये भी आपका गलत ऑप्शन हो गया। सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक, राइट। सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक गलत हो गया। सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज ऑल्सो इनकरेक्ट। परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग, यस, परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस ऑप्शन शुड बी करेक्ट। या ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। सेम एज क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, तो बेटा फिर से फार्मूले आप अपना तैयार रखें। क्लोजिंग स्टॉक कैसे होगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फार्मूला है। अब आप इस फार्मूले पर अगर देखते हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन सी करेक्ट आंसर दिख रहा है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो यू कैन डिटरमिन द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक by this formula. Option C is a correct answer. And question number 15. If opening stock is understated, so my dear, if opening stock is understated, in such case, the expense side is lower and income side is greater. Credit side of trading account will be greater and expense side of debit side of trading account will be lower. तो in such case profit will increase. क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एक्सपेंसेज के बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है, एक्सपेंसेज के घटने से प्रॉफिट बढ़ता है। ऐसे ही आप समझ लें, इन केस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इफ डेबिट बैलेंस इज गोइंग टू रिड्यूस बाय एनी रीजन, so in such case profit will be increased, gross profit will be increased, and if debit side of trading account is increased, then gross profit will be reduced by the same amount. So therefore option first is correct for question number 15. And next 16 हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें मालूम है। You can understand well with the explanation of question number 15. Now the opening stock is overstated. The opening, it means कि debit side is increased, then the gross profit will be reduced by the same amount of increasing. तो क्या होगा? प्रॉफिट विल डिक्रीज, प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. इफ क्लोजिंग स्टॉक इज अंडरस्टेटेड, इट मीन्स अब क्रेडिट साइड आपका कम हो गया, तो क्रेडिट साइड कम हो गया तो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो जाएगी, राइट। और अगर क्रेडिट साइड इंक्रीज हो गया तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगी। अब आप क्वेश्चन नंबर 17 पर देखें, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज अंडरस्टेटेड, तो इन प्रॉफिट विल इंक्रीज एंड करेंट एसेट्स विल डिक्रीज। करेंट एसेट्स का यहाँ कोई काम ही नहीं है। फिर भी इफ प्रॉफिट विल इंक्रीज, तो बोथ प्रॉफिट एंड करेंट एसेट्स विल डिक्रीज। अगर क्लोजिंग स्टॉक, यस क्लोजिंग स्टॉक इज अंडरस्टेटेड, तो क्लोजिंग स्टॉक इज सबऑर्डिनेट ऑफ योर करेंट एसेट्स, तो करेंट एसेट्स भी कम हो जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक से ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड भी कम हो जाएगा। तो क्रेडिट साइड अगर कम होगा तो प्रॉफिट भी उतने ही अमाउंट से कम हो जाएगी, यानी बोथ द प्रॉफिट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट एंड करेंट एसेट्स बोथ विल डिक्रीज। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता क्या नेट प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तब भी आप समझ लें कि नेट प्रॉफिट विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट on which the closing stock is reduced, right. Question number 18. If closing stock is overstated, same question, same, तो क्लोजिंग स्टॉक अंडरस्टेट होने से प्रॉफिट कम होगी, तो क्लोजिंग स्टॉक ओवरस्टेट होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगी। सेम एज क्लोजिंग स्टॉक के इंक्रीज होने से करेंट एसेट्स भी इंक्रीज हो जाएगा।
तो यानी प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा और करंट एसेट्स भी इंक्रीज होगा। बोथ प्रॉफिट एंड करंट एसेट्स विल इंक्रीज। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर for question number 18. And in case of question number 19, in the previous year closing stock was valued more by 10,000. अब बेटा फिर से वही सेम क्वेश्चन आ गया आपके पास। क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल 10,000 रुपये से बढ़ गया था, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक विल बी ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर। Opening stock of current year, it means debit side of trading account will be increased by rupees 10,000, राइट। तो हमारा इस साल की जो प्रॉफिट होगी, ग्रॉस प्रॉफिट होगी, वो 10,000 से रिड्यूस हो जाएगी। और अब आपको ये देखना है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इज ओवर स्टेटेड एंड करंट ईयर प्रॉफिट इज ऑल्सो ओवर स्टेटेड। देखिए प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से बढ़ गई होगी, ये बात तो ठीक है। और इस साल की प्रॉफिट भी ओवर स्टेटेड हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इस साल की प्रॉफिट कम हो जाएगी क्योंकि expense side of trading account is going to increase by rupees 10,000. Therefore, the option first is incorrect. Next, previous year's profit is understated. Understated तो हो ही नहीं सकता. This option is also incorrect. Previous year profit is understated. ये भी आपका ऑप्शन incorrect हो गया। और अब आपको क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी देखना है और अच्छी तरह से सोचना भी है। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट विल बी ओवर स्टेटेड, राइट। पिछले साल क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ था तो प्रॉफिट भी बढ़ गई होगी, और इस साल क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन गया है तो इस साल की प्रॉफिट कम हो जाएगी। यह ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19. Dear students, we continued with our MCQ questions. Today I have discussed 19 questions of set A of the book of Professor P.C. Tulsian. This book is especially for the students of competitive examinations. आप हमारे साथ बने रहें. I would discuss all of the options of Professor P.C. Tulsian's book to get success in your examinations. Thanks a lot. प्रोफेसर घनश्याम मिश्रा। धन्यवाद। जय श्री राम।